Hi, dear students. In last video, we have discussed about the fundamental units, derived units, that is the system of units, the plane angle, solid angle, supplementary units, and convention for SI units. We have already discussed, dear student, and today we will discuss about our next article, that is the dimensions and dimensional analysis. ये जो डायमेंशन जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, ये डायमेंशन वर्ड हम हमारे डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. जहां जहां मेजरमेंट होता है वहां वहां ये डायमेंशन वर्ड क्या करते हैं, हम यूज करते हैं. अगर हमारा प्लॉट अगर मेजरमेंट अगर करना है तो हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ओके, और उसको फिर एक डायमेंशन में क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं. मानो अगर हमारे घर का हॉल अगर 18 और 10th में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 18/10. अगर हमारी घर की रूम अगर लेंथ और ब्रेथ उसकी 12 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 12/12 की हमारी क्या है, घर की रूम है. यानी 12/12 वो रूम का क्या हो गया है, डायमेंशन हो गया है. 12/12 वो रूम का क्या हो गया है, डायमेंशन हो गया है. यानी कोई भी चीज हम एक किसमें लाता है, ऐसा मेजरमेंट में लाता है, और वो मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं. ओके, तो ये हो गया डेली लाइफ में. अब फिजिक्स में डायमेंशन का क्या रिलेशन है, हाउ दिस डायमेंशन वर्ड रिलेटेड टू फिजिक्स. दिस डायमेंशन वर्ड is determine the nature of the physical quantity. Nature of the physical quantity. You know that, students, all the derived quantity are expressed in 7 base fundamental quantity are the length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. And these dimension are denoted by square bracket. This dimension are denoted by square bracket. For fundamental unit length, fundamental unit for fundamental quantity, that is for length, it is denoted by square bracket L. It is denoted by square bracket L. For mass, it is denoted by square bracket M. For time, it is denoted by T. It is denoted by T, that is square bracket T. And for temperature, it is denoted by K. It is denoted by K. For electric current, it is denoted by capital A, square bracket capital A. For luminous intensity, it is denoted by CD. And for amount of substance, it is denoted by square bracket mole. Square bracket mole. These are the 7 dimension of physical world. All the derived quantities are expressed in terms of these 7 fundamental quantities or fundamental units. Fundamental quantities or fundamental units means dimension shows how the fundamental measurement involved in that physical quantity. यानी fundamental unit का कौन सा यूनिट उसमें इन्वॉल्व हुए हैं डायमेंशन में, ये शो करने का काम कौन कर रहा है, डायमेंशन कर रहा है. कौन कर रहा है, डायमेंशन कर रहा है. एंड व्हाट इज द definition of dimension? That is the dimension of physical quantity. Dimension of physical quantity are the power to which
dimension of a physical quantity are the power to which conserved fundamental unit must be raised. पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं डियर स्टूडेंट. पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट टू विच द कंजर्व फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज in order to obtain unit of the given physical quantity. Unit of the given physical quantity. What is the definition? The dimensions of physical quantity are the power to which the conserved fundamental unit must be raised in order to obtain the unit of the given physical quantity. Then what is the meaning of this definition? अगर मानो अगर हमें ये रेक्टेंगुलर टेबल का अगर एरिया अगर मेजरमेंट करना है तो वो एरिया हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? उसका लेंथ और ब्रेथ मेजर करके क्या करेंगे? एरिया मेजरमेंट करेंगे. और लेंथ और ब्रेथ मेजरमेंट करने के लिए हम सेम बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट क्या करेंगे? यूज करेंगे. वो है लेंथ. वो क्या है? लेंथ. यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल, एरिया that is the product of length into breadth. Product of length into breadth. लेंथ के लिए कौन सा अपन फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं? लेंथ. और उसके बाद ब्रेथ को भी हम कौन सा फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं? लेंथ का फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं. यानी ये जो हो गया है एरिया, दैट इज इसका पावर हो गया यल. इसका पावर हो गया यल. अगर हमें रेक्टेंगुलर टेबल का अगर वॉल्यूम अगर मेजरमेंट करना है, वॉल्यूम अगर मेजरमेंट करना है तो वो कैसा करेंगे हम? दैट इज लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट. हाइट के लिए भी हम सेम फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं लेंथ. ब्रेथ के लिए भी हम सेम फंडामेंटल यूज करते हैं. हमने पहले देखा है. तो इसका अगर हम देखें तो इसका क्या होगा? दैट इज यल क्यूब. दैट इज यल क्यूब. मीन्स दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट यल स्क्वायर. दिस स्क्वायर ब्रैकेट यल स्क्वायर called the dimensional formula of the area. Dimensional formula of the area means what is the meaning of dimensional formula? Means dimensional formula are the formula in which, that is dimensional formula are the formula in which there is contain the appropriate power of the fundamental unit. That means it contains the appropriate power of the fundamental units. Means एरिया का जो इंडेक्स जो फैक्टर 2 है वो क्या इंडिकेट्स कर रहा है? एरिया की डायमेंशन क्या है? 2 है. एरिया की डायमेंशन क्या है? 2 है. अगर हमें वॉल्यूम की अगर हमें डायमेंशन अगर निकालना है तो इसका पावर कितना आया है? 3 आया है. यानी इंडेक्स फैक्टर जो 3 जो इंडिकेट्स कर रहा है वो क्या इंडिकेट्स कर रहा है? वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है? 3 है. वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है? 3 है. यानी आर दी पावर, यह है मीनिंग इसका. आर दी पावर टू विच द कंजर्व फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज. यानी इस वॉल्यूम की अगर डायमेंशन अगर निकालना है हमें तो हमने पावर 1 से क्या हुआ? हमारा बढ़ गया है. सेम पावर आया कि हमारा 2 वॉल्यूम के लिए आया क्या? नहीं, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी क्या हो गई? इन्वॉल्व हो गई. इसमें एक क्वांटिटी क्या हो गई? और इन्वॉल्व हो गई. यानी मेजर डायमेंशन में जो मेजरमेंट होता है, कौन से क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है? यानी हम कह सकते हैं कि एरिया में 2 आइडेंटिकल लेंथ यूनिट है. वो है लेंथ और ब्रेथ. हम
वॉल्यूम में हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द 3 आइडेंटिकल फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज द लेंथ, दैट इज द लेंथ मीन्स दिस। और इसमें ये जो एरिया वॉल्यूम जो ऑल द इन मैकेनिक्स ऑल द डायमेंशन आर एक्सप्रेस इन 3 फंडामेंटल units, that is the length, mass and time. length, mass, time. मैकेनिक्स में सभी के सभी जो डायमेंशन है फिजिक्स क्वांटिटी की, वो लेंथ मास टाइम में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो इसमें जो है एरिया में जो है मास भी एब्सेंट दिख रहा है, यानी इसका डायमेंशन हम ऐसा भी लिख सकते हैं m0 t0 l2। इसका डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं m0 t0 l3, m0 t0 l3। हम कैसे रीड कैसे करेंगे, डायमेंशन रीड कैसे करेंगे, 0 इन मास 0 इन टाइम, डायमेंशन ऑफ मास 0 मीन्स इसको हम कैसे रीड करेंगे, 0 इन मास 0 इन टाइम 2 इन लेंथ, 2 इन लेंथ। यानी डायमेंशन से हमें इंडिकेट्स हो रहा है कि ये जो एरिया है ये एरिया मास और टाइम पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन मास एंड टाइम बिकॉज इट इज अब्सेंस। इसकी जो पावर है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, 0 है। यानी जो एरिया में सिर्फ कौन से क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट का मेजरमेंट इन्वॉल्व है, ओनली दी लेंथ, मास एंड टाइम डज नॉट इन्वॉल्व, मीन्स एरिया इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी मास एंड टाइम, mass and time, and all the 7 fundamental remaining fundamental units are also absent. In case of the volume, it is independent upon mass and time. Its dimension is L cube, means it is also involved the one identical base unit, that is the length. That is the length. For another example, that is a velocity. Velocity, it is a displacement. What is the formula for velocity? That is displacement upon time. Means displacement is measured in fundamental unit length. Time is measured in t. So what is the dimension of this velocity? That is L to the power 1. L to the power 1. L to the power 1 and t to the power -1. t to the power -1। ये अगर न्यूमरेटर में अगर गए तो उसका पावर क्या होगा, माइनस होगा। इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, सो इसमें अब क्या है, मास का टर्म क्या है, मास का जो डायमेंशन है वो क्या है, अब्सेंस है। यानी 0 इन मास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इन मास 1 इन लेंथ -1 in time, -1 in time, means we say that the velocity is independent upon the mass of the object or mass of the body. We say that the velocity of the object or body is independent upon the mass, is independent upon the mass. अगर और ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन में क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व नहीं होता, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व नहीं होता। अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन अगर निकालना है, हमें स्पीड अगर मेजरमेंट करना है, हमें एवरेज स्पीड मेजरमेंट करना है, हमें एवरेज वेलोसिटी मेजरमेंट करना है, इन सारे क्वांटिटी के लिए एक ही डायमेंशन आएंगी। वो क्या रहेगा, L1 t-1, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। It does not involve the magnitude of quantity. Means that is area, that is the power 2, L power 2. Means this is the dimensional formula for area. This is the dimensional formula for area. What is the meaning of a dimensional formula? That is the formula in which contains the appropriate power of symbol of fundamental units. Appropriate power of symbol of fundamental units. It is called the dimensional formula. It is called the dimensional formula, and
द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट, द एक्सप्रेशन which gives the relation between fundamental unit and derived unit. This equation or expression called as the dimensional equation. Dimensional equation. So, dear student, ये अब डायमेंशन का होगा और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. दैट इज अ चार्ज. It is a I T means that is a इसका जो सिंबल है वो हम सॉरी इस पे ये भी लिखते हैं और हम आई यूज करते हैं. आई सिंबल हम यूज करते हैं. दैट इज I1 T माइनस T प्लस 1, I1 T प्लस 1 और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IT. लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जिसमें जब हम डायमेंशन लिखते हैं देयर इज नो कॉमा बिटवीन टू सिंबल्स. देयर इज नो कॉमा बिटवीन टू सिंबल्स. इट इज नॉट एक्सप्रेस इन सिंबल्स. आई जो है ये फंडामेंटल यूनिट के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए. कहीं कहीं एम्पियर्स भी लिखा है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें आई सिंबल क्या किया है, यूज किया है. ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये सब हम ये सब डायमेंशन का होगा. ये पहला पार्ट है डायमेंशन का. ये हमारा जो वीडियो है ये पहला पार्ट है डायमेंशन का. उसके बाद हमें डायमेंशन एनालिसिस की स्टडी करना है, यानी यूजेस ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन एनालिसिस क्या है. इसके लिए हम सेकंड पार्ट रेडी करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को ये जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो और ये जो है आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका आनंद ले सके. थैंक यू सो मच.